ika ka tekseka ladak se mespo ka substance kundun ka seringle genle teneka ashrafle nang ikaskut kane yulmi natsoks yul ne nubrane zanskar ne kargil ne changtang ne na lon ban chiklep tene nomolerik su chennai ne su dubai ne ningnang ibe pia skjolin yot molin chiktang nge kong changmala tashis delekjuat na lon le piang deringi ka ziksinino lo kya chu kya dun skjot kane ama chocho le guni ka skjote oteno nge kong changmala thugje chejuat inna bo ladak se spalinok inna bo ladak se kyudinok nam ladak la gozdom chat ladak se mimangsgun rangdot la maziksla chiang maziksala chi objal skyot nang ir gundange tangmoy nanga tene le chalo molin chiktang le askyote otenok inna bo ladak se kyut poinok ire ngatang ladak spo yuljik manpa nangchang gyurchuga no ale ka nangchang betene chi harbup chanang chante tangmo yongnang zomte tebar donglen jadat te chokse nangchang ge chulla nga namsang ladak spol tangin doat pinba diring nyeja changme stante tangs yuljong se ewa met pala chosluk se ewa met pala ka changmane zomte skat chiksalala ladak se tonse phia idet chige mi kabo naning moldupin tete chakpam mane mazum kane mi zomte nok molin chiktang dilan tesang tene ma zomte ngatang yang bomane stante tangs ladak se skat puchin ladak se gozdom chin tukje che ibe phia ngeja changma nge chokne changdak kulin tantanla ngati ladak spo dembe nang changjige chulla isang mas tanpojate luzgos inang changbe nanga tenanga tange yap choksla ka tupstan sewang gunjukste uteno inang changbe nanga tange abile abi chocho gunjukste uteno kaune lo mangpone skulma changme na khakne nin skot kyak inang chakme nanga tange ajang chiring lezerin ngatai ajang ashraf lezerin ngatai te chokse nangchang jinga iladak potsorarak yang ilalak senanga nomole kunjes gune daksaika pumune skor la shadazat inangchang benanga tene bara bure ningstam shaden dukkane acho jigangayot dringa ngeja te achowang zomte nangchang benanga spera sum shaden samyale jeche sompa I chikdilbo ngatang changme spalino inna chikdilbo nyampo ngatang rate rus nyampo yuksna tene midup chawa chiang met mithop chesyang chiang met tene ngatang rang changma manna yang suyong ste ngati phia choche nale diring daksa ngata skat matang na tene nam sal che zinjer kane school ma beka ngatang changma zomte skyoches po ma hepak chorara te I tolsa be phia ngatanga objal tantan la nam go saddo chi jiga lamo jiga thubamanok yang lamo athopkan gun rinchan ang yongamanok rinchan jik gosat na tente nang zops pe naksang ngatanga khurgo sanok te phia ngejuat chilo dilanta chi nam gosnang nga shok cha chakpa chamshige za shat na golla duk gosnang dukche se phia taldikin serak singstein machat nga iches machat gyuzyot ngejenang nang chamshikpo tene rangyule phia chi zat gosnang zatche se phia taldikin yang te chokla taldikyot kane miunla mangchya zat gosang yoamanok zilgin non pachanok aholdwang ziksanok iunnang rate dante mipanok ngasting metpa diring rang thore rang micha ngasting metpa ngati tongun tamtanla dubanok te chespo ata gyalraps ne parla ziksin skyotenok yang gyalraps soma ata jangchezinok
nge ja changala te pias kerak chings de khagring lam sakpas kyot hosnang tene gyuxpa sambas keste iwa mangporing mochos te phanches miduk tukla gonste so jungyang tene ngatai spera nyanna kangbo inna ngatang taldik jugos tanye tene लद्दाख से ना आता है लद्दाख से युल्मी गुल्ला भारत माता की जय भारत माता की जय। अब मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज लद्दाख के हजारों लोगों के साथ मिलकर लद्दाख की मन की व्यथा मन की बात आपको सुनाना चाहूंगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक छोटे प्रदेश जहाँ लाख 1.5 लाख तो लेह में और लाख 1.5 लाख ही कारगिल में हैं, उसमें से 20-30 हजार लोग यहाँ पर मिलकर आपसे एक गुहार लगा रहे हैं, आपसे एक मन की बात सुना रहे हैं, तो वो हम आपके साथ मिल के सुनाएंगे। कैसा है आप लोगों की मंशा और आपकी अनुमति लेके मैं प्रधानमंत्री जी को ये कुछ मन की बातें सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले तो लद्दाख के लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं और रहेंगे कि आपकी सरकार ने आज से 4 साल पहले लद्दाख की सालों दशकों पुरानी मांग पूरी की। उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और करते रहेंगे। और उसके बाद क्योंकि मैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता हूं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हूं, तो मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं जो आपने सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में भी एक रास्ता दिखाया भारत के आदर्शों का, सादगी भरे जीवन का, मिशन लाइफस्टाइल्स फॉर एनवायरनमेंट, जिस पे भी मैं सालों से बोलता आया हूं। आपने इसे दुनिया तक पहुंचाया कि जब तक देश के दुनिया के लोग सादा जीवन नहीं बिताएंगे, ये जो दुनिया का पर्यावरण है वो उसे सह नहीं पाएगा। इसके हम सब आभारी हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं इस बात के लिए। और हम इसके भी आभारी हैं कि जब आपने लद्दाख को यूटी घोषित किया तो इस पर्वतीय प्रदेश, इस संवेदनशील पर्वतीय प्रदेश के संरक्षण के लिए जब 370 नहीं रहा तो आपने लद्दाख के लोगों को भरोसा दिलाया। आपके सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने यहाँ आकर दिल्ली से बार बार हमें आश्वासन दिया कि लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। ये भारत के नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के मिनट्स में छपे हुए हैं। ये आश्वासन यहाँ पोलो ग्राउंड से दिया गया। ये आश्वासन ट्राइबल जनजातीय मंत्री से, न्याय के लॉ मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से, हर तरफ से हमें ये आश्वासन मिला। और फिर उसके बाद आपके सरकार ने, आपके पार्टी ने एक बार नहीं 2 बार हमें ये आश्वासन इलेक्शंस में, चुनाव में इस तरह के मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र के जरिए भी दिया। ये मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा लद्दाख के इन तमाम लोगों की तरफ से। आपने संसदीय चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइबल एरिया डिक्लेरेशन। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आश्वासन दिया गया था 2019 में। और फिर 2020 में जब लद्दाख के लेह जिले में यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित चुनाव हुआ पर्वतीय काउंसिल का, हिल काउंसिल का, तो फिर पहले नंबर पर इस मैनिफेस्टो में यही बूंद
यही मुद्दा है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपने हमारे साथ वादे किए, आश्वासन दिए, इन सब का हम फिर धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि देर हुई है 3-4 सालों का, मगर अंधेर नहीं है, हमारा ये यकीन है। तो हमारा यकीन ये है कि जब आपने ये आश्वासन दिए तो आप इसे देर सवेर पूरा जरूर करेंगे, मगर दुख उच्चारण करे, उन पर ज्यादतियां होने लगे, बच्चों को पकड़ा जाने लगा, और हमने सोचा कि शायद जिन नेताओं पर हमारा इतना भरोसा था वो नहीं रहा। फिलहाल के महीनों में हमें ये पता चला कि ऐसा भी नहीं है। केंद्र सरकार में केंद्र के नेता, मंत्री, गृह मंत्री सब लद्दाख के हितैषी हैं, भला चाहते हैं, देना चाहते हैं। हमें फिर ये पर्दा जो हमारे बीच में केंद्र के साथ आ गया था, वो पर्दा फाश होते हुए नजर आया, और पता ये चलने लगा कि कुछ किया, और हमारे जो नेता हमारी आवाज को ले जाने के लिए चुने गए थे लद्दाख से, वो हमसे ज्यादा उनके असर में आए और उनके साथ मिलकर वो लद्दाख को बेचने लगे, खरीद फरोख्त करने लगे, और वो अब तक ये संदेश देने लगे कि ये संरक्षण यहाँ किसी को नहीं चाहिए, ये संरक्षण, ये 6th शेड्यूल, ये 2-4 लोगों की, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ ऑपोजिशन की मांग है, इस पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये रखिएगा। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लद्दाख पर 6th शेड्यूल आ जाए तो फिर ये उद्योग मनमानी नहीं कर पाएंगे, खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे, तोड़ मरोड़ जो पर्वतों का हुआ है हर जगह, वो सब यहाँ नहीं हो पाएगा, लद्दाख बचा रहेगा, और वो ये नहीं चाहते थे, तो ये गलत संकेत देने लगे। तो जब उन्होंने ये कहा कि ये कुछ ही लोगों की मांग है, तब लद्दाख के लोगों ने आपको जवाब संदेश देने के लिए अपने पैरों से वोट दे। 6th शेड्यूल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऐसी हमारी उम्मीद है ऐसे सरकार से, ऐसे नेताओं से, जो कि ईमान के नाम पर ही सत्ता में आए। आपको याद है कि लद्दाख में बहुत बड़े स्तर पर होने लगा, कुछ कदम भी उठाए गए, कुछ अदल बदल भी हुए, मगर हमें नहीं लगता है कि सफाई अभी भी है। अगर आप देखें पिछले 3-4 सालों का खनन करें कागजों को, तो बहुत बरमान मिलेंगे आपको करप्शन के। मैं खुद आपको कई ऐसे मिसालें और सबूतें दे सकता हूं। तो ये हाल है लद्दाख का, और ऐसा ही हाल देश में भी लग रहा है। आप पाए के ब्रोकपा लोग रहते हैं, उन्हें बचाने की जरूरत है मुझसे भी। कोई वहां जाके ऐसे खिलवाड़ नहीं करें कि उनकी संस्कृति बिखर जाए। तो 6th शेड्यूल उन्हें हमसे भी बचाता है, और जरूरी नहीं है कि हर चीज में अंदर बाहर करें। हो सकता है ऐसे स्ट्रेचेस हों जहां पर हर कोई देश से बल्कि दुनिया से आके भी उद्योग लगाए, ऐसे डिमार्केटेड एरियाज में, मगर जो संवेदनशील पहाड़ हैं उन्हें बचाया जाए। तो ये कोई इस जाति उस जाति, बाहर के अंदर के, इनकी बात नहीं है। ये एक इकोसिस्टम को, एक संवेदनशील संस्कृति को बचाने की बात है। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे आखिर में कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जो कि ध्यान में पहले से ही रखा गया था, इसीलिए ये वादे हुए थे लद्दाख के लोगों के साथ, आप जल्द ही जल्द न सिर्फ लद्दाख को बल्कि पूरे भारत को ये फिर एक भरोसा, एक आश्वासन, एक उम्मीद जगाएंगे कि देश में अभी भी वचन, सच्चाई
जिंदा है और उस सच्चाई को बचाए रखने के लिए अगर हमारी जान जाए तो बहुत कम होगी। मुझे दुख ये है कि एक ही जान है, कितने बार दें। तो हम इसके लिए आज भारत में जैसे हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज भ्रष्टाचार से, आज झूठ से लड़ने की जरूरत है। और इसमें अगर हम भगत सिंह बनते हैं, सुखदेव बनते हैं, तो हमारी ये सबसे बड़ी खुश नसीबी होगी, खुशकिस्मती होगी। मैं आपका हाथ जोड़कर इस तमाम लद्दाख के लोगों के साथ मिलके फिर एक बार धन्यवाद और फिर एक बार भरोसा आपसे लेने की गुहार लगाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।